بنیادی بات یہ ہے کہ مسجد میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بڑا ضروری ہو سکتا ہے، تو ہم انشاءاللہ سب کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارا آپ سے کھلی کچہری کا مسجد کے اندر ملنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے نماز کے لیے، زیادہ تر لوگ جمعہ ضرور آتے ہیں، ادروائز ایسے کم ہی ہے، لیکن جمعہ زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ مسائل ہے اور وہ کسی وجہ سے کھانا نہیں پہنچ سکتا، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے، تو ہم آپ کے پاس خود آئے ہیں تاکہ آپ کا ہر طرح کا مسئلہ دور کیا جا سکے۔ تو آپ میں سے کسی بھائی کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ آج بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹورک جو ہے آہستہ آہستہ شہر بننے جا رہا ہے، تو شہروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ فلاں بندہ جو کرایہ داری کے طور پہ آیا ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے، کیسے آیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ آپ شہریوں کے ذمہ یہ ضروری کام ہے کہ اگر کوئی ان نون بندہ خواہ وہ افغانستان سے ہو یا ادھر ہی پاکستان کی کسی جگہ کا ہو، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا بڑا کرمنل ہے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ فلاں بندہ ہے، کرایہ داری پہ آیا ہے، اس کی حقاقت مشکول ہے، کوئی لیگو ڈالا آتا ہے، کوئی کار آتی ہے چھپے سے اس کو لے کے چلی جاتی ہے، ادھر محلے میں کسی کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے، تو اس طرح کے بندے جو ہیں وہ تھوڑے مشکوک ہوتے ہیں، یا تو وہ بہت بڑے کسی معاملے کے اشتہاری ہوتے ہیں یا پھر کسی دیگر بڑے مشن پہ آئے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے، شہر کے لیے بدامنی کا باعث ہو سکتا ہے، خدا خاص کر کسی بڑے مسئلے میں ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے ہمارے پاس امن کمیٹی بنی ہوئی ہے پہلے سے، تو فعال نہیں تھی، کافی ٹائم ہو گیا تھا، ابھی ہم آج سے امن کمیٹی فعال کر رہے ہیں۔ امن کمیٹی میں امتیاز صاحب ہیں، ہمارے ممبر ہیں، اور ان کے علاوہ 7-8 لوگ اور ہیں۔ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے طور پہ بھی حل کر لیتے ہیں، کھانے میں آ جائیں تب ہم آپ کی طرف ریفر بھی کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد صاحب میرے ساتھ ادھر موجود ہیں، آپ خود بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہوتے ہیں گھروں کے، اس کے لیے ٹائم نکال کے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں، خاص طور پہ جو +50 50 سال سے زیادہ مشہور ایج کے لوگ ہیں، وہ تو اپنے گلی محلے میں ضرور بھائیوں کی معمولی طرح کلامی لڑائی جھگڑا تھوڑا بہت وہ آپ خود حل کر دیتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امن کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کے پاس چلے جایا کریں، ہمارے پاس آ جایا کریں، تھانے میں ہم آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں گے۔ ہاں جی، ابھی سوال جواب کا سیشن شروع ہے، جو بندہ بات کرنا چاہے، جس چاہے موضوع پہ بات کرنا چاہے مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ اگر پبلک سے یا پولیس سے یا کسی بندے کو کوئی شکوہ شکایت ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ اتوں بڑھنا پے چلے ہیلو سر، تھوڑی دیر پہلے سارے چھوڑ ایک کیس ندیم اسلم والا ماشاء اللہ بڑا اچھا کردار ہے سارے، لیکن اس کو ہٹ کے اسی دیکھتے ہیں کہ ڈسکورڈ سے منشیات فروش بڑے کھلے عام منشیات فروش پھر رہے ہیں، اتنے عام لبھی ہے منشیات، وہ بارے تھی کی سدباب کر رہے ہو؟ نوجوان تباہ ہو رہی ہے بالکل، مطلب ہر گلی محلے منشیات فروش کھڑے نے سریام دیکھتے، لازمی گل ہے تھوڑے علم چ ہوئے ہے، وہ بارے کی لایا ہونا کرنا؟ امتیاز بھائی، منشیات کے خلاف تو کافی 2 ماہ ہو گئے ہیں، بہت اسٹرانگ جو ہے ہماری کمپین چل رہی ہے، جتنے بڑے بڑے منشیات فروش ہیں سب جیل میں ہیں، اگر کوئی جیل سے باہر آیا ہے وہ دوبارہ ہم لوگوں کو جیل بند کر دیا،
अभी जो आपकी शिकायत है छोटी छोटी उसके भी हम अपने लड़कों को कह देते हैं, सादा कपड़ों में भेजनी पड़ेगी, तो उनको भी हम उठा लेंगे। और कोई भी मंशियात फरोशी वाले मकरूज धंधे में मतलब सबूत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस गली में मदे में शिकायत है, मुझे बता दें, शकील है, हर वक्त हमें होता है, इसको बता दें, तो उसी वक्त हम एक्शन लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एसएचओ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अवाम ही की तरह बैठे हैं और हमारे सवाल और जवाब के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने क्योंकि पिछला जो अभी इम्तियाज़ साहब ने एक जिक्र किया, वैसे मैं पंजाबी की गल करना सारे मुद्रा आसानी ना समझ लग जाएगी कि पिछला केस जोड़ा होया नदीम असलम वाला, ऐसे तो साहब ने मुलाकात रही है, इन्होंने माशाल्लाह बहुत तावन किया और साढ़े जिन्हें भी लोग थाने से जाते थे उन्होंने ड्यू रिस्पैक्ट भी दी और साढ़े जेड़े मुतालबे से उन्होंने इन्होंने कोशिश भी की कि हर तरह अमल होए, तो जिहदे मैं शुक्रिया अदा करता। तो ये जिमें कि मंशियात का क्या मतलब बहुत बर्निंग इशू आ, बहुत बड़ा एक इशू है जिहड़ा कि हल होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो साहब ने कहा वा, मैं आवाम नाल भी मुखातब होंदियां होइयां गल कहना वा कि तुसी भी कानून नूं नाफज करने वाले अदारियां दे सपोर्टर बनो, उन्होंने पासबान बनो, ताकि जिहड़े भी कोई गैर कानूनी काम साढ़े शहर से होंगे उन्होंने रोकने वास्ते असीं भी अपना किरदार अदा कर सकीए। मैं तो ये समझदा कि पुलिस जिहड़ी आ वो बंदियां दी गल ही नहीं सुनती, लेकिन इस गल का सबूत एसएचओ साहब ने इतने मस्जिद से आके दे दिता कि मैं थोड़ी गल भी सुनागा और वह हल भी करांगा। तो हुण मैं आवाम नाल दरखास्त करदा वां कि अगर कोई भी मसला हुंदा वा ना तो कानून के दायरे में रहिंदियां होया एसएचओ साहब के नाल मिलो, उन्होंने उस मसले का जिक्र करो तो इंशाअल्लाह हल उन्होंने निकलेगा। एक बार फिर मैं ये कहना वा कि जिहड़े मंशियात फरोश ने वो तो चलो फड़ लेंदे ने, लेकिन जिहड़े मंशियात इस्तेमाल करने वाले लोग ने भी बड़े काबिल रहन ने। सानू चाहिए कि असीं अपने शहर के लैवल तक उन्होंने वास्ते कोई एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होंदा ना कि उन्होंने इलाज वास्ते कोशिश करिए। मैं तो कहना कि साढ़े कुछ मुठैया हजरात जो रल के कोई इदा का प्रोग्राम बनाओ कि ये लोग जोड़े कि मंशियात के चुंगल जो फसे हुए हैं इन्होंने वास्ते भी कोई हल करिए ताकि वो मुआशरे के पॉजिटिव रोल अदा कर सकन, ताकि मुआशरे में एक सेहतमंद माहौल दे सकन। एक बंदा जिहड़ा घर के एक बंदा एडिक्ट होंदा ना, एक नशा वाला होंदा, सारे घर वालों सूली ते टंगिया होंदा। इसलिए उस एक बंदे की अगर सेहत असीं करांगे ना तो सारे घर के उत्ते एहसान होएगा और इंसानियत के भी एहसान है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गल की है कि पुलिस ने अपना काम करने के लिए, लेकिन आवाम जी है वो बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है इस मंशियात को खत्म करने वास्ते या कोई दीगर लोगों को खत्म करने वास्ते बहुत मुश्किल किरदार हो सकता है। इसके अलावा और कोई साथी रावत साहब मंशियात के हवाले में बच्चे को पता कौन कौन मंशियात पे पुलिस से मुकम्मल इलम जाएगा मंशियात कौन बेटा कार्रवाई नहीं करती पुलिस के बंदे जिहड़े उन्होंने सहूलतकार है। ये बिल्कुल बनबना मस्जिद में गल कल्ले कल्ले बंदे पता इन्नी खुली मंशियात व्यक्ति की कोर्ट भी मैं 50 साल तो हाँ जी मैं अपनी जिंदगी जिन्नी मंशियात देखती नहीं देखी जिन्नी खुली हो हर बंदे खड़े और एक अड्डा ऐसा है कोर्ट के जोड़ा साढ़े घर के लागे वो अड्डे के आप गड्डियां खड़ियां मोटरसाइकिल खड़ियां बंदा आउंदा एंड में ला के चले जाता हर 10 मिनट बाद बंदा कोई फड़ बात वो साफ कहते बेचण वाले थाने को असीं पैसे दिंदे आ थाने को असीं सामझिया खा खर्चा सिखाने का असं चुक्या सानू कोई लग सकता ये तो सदे बाब इतना नहीं होना भी गल करो ते गल नूं मिटा दिओ यह गल जी इत्थे होंदी है किन्ना मिनटां बाद पुलिस दे मुलाजमां ने उन्होंने दसनी है। बहुत अच्छा साहब इस चीज़ का जवाब देना लोग
मैं मस्जिद खलो के कहना वा कि मेरे SHO साहब और मैं मतलब सब तो ज़्यादा तैनाती स्थानीय दे रही है। अगर अज तक मनशियात फरोज को पैसा दिया हो ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਜਾਂ ਐਸਐਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਨਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪਿਛਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਗੁੱਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇ ਲੱਗ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਐਦਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕਥਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਵਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸਐਸਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਣਾਣਾ ਦਾਮ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ अगर इन्हें जो बर्दाश्त है तो जिंदगी मतलब नहीं है सच ऐसी खुशियात आ रही है और उसका नतीजे करें और इस तरह अल्लाह पाक की मदद की जा रही है कि इन स्कूलों को जरूरत है दूसरा इन्होंने जो कार्रवाई इसी कर रहे हैं इंशाल्लाह इन शांति करते हैं और जिला भी इन्होंने होता है अजय तक दो माह मेरी पोस्टिंग हुई है बिल्कुल इन्होंने बारिश रही सी तो मैं को पर्सनली टेकअप करता और ये कल मेरे वाले भी कर रहे हैं बिजकोट के जिन्ने रस्ते बाहर को निकलते हैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖ ਭਰ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਦੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ अपना एरिया 10 दिन के वास्ते समझ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾथ ਪਾਸਾ ਦਾ ਲੱਗ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ इंशाल्लाह कार्रवाई होगी क्यों नहीं होगी हो ही ਮੈਂ नहीं ਕਹਿੰਦਾ सकता ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ 10 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ मैं ये तो तंगदारी में कर 24 घंटे ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਲਾਏ ਆ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਡੱਕਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਆਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਸਟਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪੁੱਛਣਾ उसी वही इतलाह दो कि जरूरत है इस पर आगे करना ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ मैं देख लेंगे मुशियात को अलावा कोई रसूल की कार्रवाई में मुताबिक कर सकते ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ असला और मुंशियात ये सारे टारगेट है इंशाल्लाह से अचीव करेंगे इसको अलावा किसी बंदे का कोई मसला या किसी से अस्सलाम वालेकुम दी मसलन हो रहा अल्लाह ताला रो बाप ऐसे जो सालों का काम किया मैं बड़ा मशहूर हूँ मेरे केस के हवाले में बहुत ज़्यादा मेहनत की और
बड़ी दौड़ लाई, दिन रात एक कर दिया और अलहमदुलिल्लाह के जो मुजरम सी वो फड़े गए। एक बड़ा प्यारा हो गया, 2 फट हो गए। अल्लाह पाक ने साझियां करती हैं, अल्लाह पाक रहम करती। तुसीं सारे दोस्तों ने मेरे वास्ते दुआ की, मेरी परेशानी में अपनी परेशानी समझा, मैंने अपना बेटा समझा, भरा समझा, सारी परेशानियां हौसला अफजाई की। तुसीं सारे मेरा साथ दिता, मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना कह दिता। मेरे सारे दिल बनी कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत आ जाती। बाकी SHO साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। कभी इंशाल्लाह मुस्लिम शहर है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहे तो बहुत जल्दी ना करूँगा इंशाल्लाह। मेहरबानी वकील साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। और सबको बड़ी गल है कि तुम डरे नहीं, डरना नहीं किसी को, खुदा तो अल्लाह किसी को डरने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा सवाल ये है कि पुलिस खौफ की आमद क्यों साढ़े वास्ते आवाम वास्ते लोग और पुलिस वाले का किसी सुनया नहीं, किसी ईमान से दोस्ती हो रही हालांकि करप्ट बंद दोस्ती और सानू सब को पता वा की हो रहा मास्टर के अंदर, लेकिन किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं है इसकी बात बस था सब को मेरा कौन को मना ना बसा तब मैं डालता सामने पड़े आए। इस गल पिछे काफ़ी तब्दीलियां भी की गई हैं, लेकिन अजे तक पुलिस के अवाम दोस्ती का जो मिशन सी वो अधूरा मसलन साढ़े यूनीफॉर्म से पहले तो याद रहेगा ब्लैक कलर की शर्ट होनी सी और वाइट जो पैंट होनी सी। अफसरान का ख्याल सी और वज़ीर साहब का ख्याल सी, IG साहब का ख्याल सी पहले जो अगर ਅਸੀਂ यूनीफॉर्म का कलर चेंज कर दी, थोड़ा जो सॉफ्ट कलर है ये सब्ज़ रंग का कलर, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਲੀ ਸਫੈਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਖਸੂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। बहुत हर एक थाने के अगर बंदे ने किसी ने शहर का विजिट खुद किया हुआ थाने का, उनके थाने इस तरह नजर आते हैं जिस तरह साड़ी मैरिज हॉल टाइप, ताकि थोड़ी चेंजिंग आ जाए, लोगों को देख के थोड़ा जहा खुशी होगी। यदि मिसाल इस तरह अगर रात के टाइम कोई सीन है तो जब थोड़ा जो फोन होता, अगर तुम दिन के टाइम सब्जा दे दो तो जिंदगी खुशी होगी। इस तरह साढ़े यूनीफॉर्म ये चेंज नहीं हो गया। उसके अलावा रवैये बहुत तब्दीली आ गई। दूसरी गल यह है कि अवाम मस्जिद में दोस्ती नहीं होंगी, पुलिस का क्रिमिनल्स के नाल होंगे। उसकी भाई वजह यह है कि अवाम मस्जिद साहब या टीचर्स साढ़े वास्ते बहुत मोहतरम होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन ये लोग सूँ कभी इंफॉर्मेशन नहीं देते कि फला बंदा जोड़ा है वो इस जुर्म के मुलव्वस सा, अगर तुम चेक करो तो यह बंदा इश्तिहारी है। इस किस्म की इंफॉर्मेशन सानू कुछ ना कुछ पैड़े बंदे नहीं देती। इस वजह तो हम पुलिस सवाल यही है क्यों नहीं दिंदे, सवाल यही करते क्यों नहीं दिंदे। बंदे सब नूं पता वा कि मास्टर की हो रहा लोग जने ऐसी नहीं होना चाहिए। हर बंदे जिन्ने बैठे सब नूं पता की हो रहा है। यार ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ गवर्नमेंट ने तब्दीली की है थाने बतौर बिल्डिंग और साड़ी यूनीफॉर्म। लेकिन थोड़ा बुनियादी सवाल मेरा ख्याल है कि ये है कि शायद साढ़ा रवैया होती है, शायद ये हो सकता है रवैये पे बड़ा रिसर्च हुआ है साढ़े एक तो वजह है सारी जरा ड्यूटी ज़्यादा 24 घंटे ही और बाहर में दिन भर 24 घंटे ही सारी ड्यूटी। तो बंदे बाद थोड़ा जही ड्यूटी करके चिड़चिड़े हुए होंगे या वो होर खराब हो होंगे हाँ शायद ना नहीं मिलते प्यार नहीं मिलते। अच्छा फिर थोड़े पब्लिक के भी कुछ दोस्त होंगे या जनाब फलाना थानेदार सी होंगे इंज हो जाता सी तो कुछ लोग होंगे या वो कहते हैं थोड़े वाली गल कि जी इन्हों का घर होगा
अगर उस पास जान के अगर पुलिस सबकी नाम करे कि भाई बदमाश जोड़े है वो थोड़े ही सिर पर चर्चा नहीं है, थोड़े ही सिर पर चर्चा नहीं होते मुनासिब नहीं होता। इस वजह को थोड़ा बहुत रवैया सब करना चाहिए। लेकिन मेरा मनना ये है और मेरा अपनी यूनियन में मैसेज यही है, जो लोग जुर्म करते हैं उन्होंने नाल रवैया इन्ना तो सख्त होना चाहिए कि वो चेयर पर बहना दूर की गल है, वो खड़े होने वो मतलब उन्होंने पसीना से पैर करते जो जुर्म करते हैं। जिस तरह भाई नदीम और आपसे किसी की बदमाशी थी, उसको अलावा भी जिन्हें भी जराइम पेश है उन्होंने वास्ते बाकी खौफ के अलावा की होने चाहिए नहीं सारे। लेकिन जो शरीफ आदमी हैं उन्होंने जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, उन्होंने बड़े अच्छे रवैये गल करनी चाहिए। मैं अपनी अगर गल करा मेरी कोशिश है जो शरीफ आदमी है, पॉजिटिव आदमी और अच्छा आदमी है वो बहुत मुहब्बत नाल गल करनी। जो जराइम पेशा या जराइम पेशा में सपोर्ट करते हैं उन्होंने मैं गल और कोई साथी को कोई सवाल करना सर एक दिन बता दिया मेरे पहले वकील टाइम में मीटिंग से और आप बात कर रहे थे लड़के ने बात भी देखा खत्म है पूरी चीज का हो गया। दूसरा शादी ब्याह करके आगे बात के लिए सर यहाँ हो गए फिर भी कोई रोक टोक नहीं है तो गवर्नमेंट को पता है इधर बहुत सारे गरीब मुतासर होने का गवर्नमेंट जिन्होंने के दो सवाल एक तो शादी से कोई फायरिंग या आतशबाजी ये बाकी लोग मुश्किल होंगे हैं। दूसरा बाजार नहीं कर रात 11 बजे तक इजाज़त है गवर्नमेंट का, रात 11 बजे तक रूरल एरिया से 10 बजे असं इंशाल्लाह 10 बजे तक ऑनवर्ड बंद करवा देगा ना बच्चे उसको पहले घर चले जाएंगे। रात समटाइम हमने देखा तो 5 शाह के को 2 शाह बच्चे जो है बाकी बैठे हुए एक सख्ती कर रहे हैं और जल्दी बंद करवा दिया करेंगे ताकि बच्चे अपने अपने घर चले जाए, कोई गलत सोच का शिकार ना हो। दूसरा आतिशबाजी या फिलहाल के सीजन खत्म हो गया शादियों का सीजन के मसला होगा, लेकिन फिलहाल भी जो मेहंदी या कोई शादी है वो उसमें कॉल आ जाती है और असली में कार्रवाई भी करते हैं। खुद गल किसी भी अगर कोई हवाई फायरिंग हो फिर सी कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। साड़ी वो SOP है प्रिंसिपल कि दूल्हे फायर को लैके ही आना ताकि दूल्हे को तकलीफ पहुँचे। लेकिन किसी की खुशी भी थोड़ी अगर छोटा मोटा को अनार की हरकत कर रहा हो वो अक्सर पुलिस आएगी क्योंकि इंसान भी हैं और थोड़े तरह मुसलमान हैं वो कहते हैं किसी की खुशी खराब क्यों करनी अगर कोई थोड़ी पाबंदी है पाबंदी है कानून और एक सेकंड तुरंत फर्जी का लाइसेंस ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੱਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਰ ਕੱਟ एक जगह दूसरा जगह तीसरा जगह चौथा जगह पंजवा जगह सारी जड़ी है करना चाहिए कारोबार बंदे को खड़ा उसी चलो दफ्तर अपने बैठे बाहर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਸਰੂਫ ਆ ਸਭ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ इस मामले से मेरा ज़ाती मामला है और
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮਦਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਦਾਸ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ। मेरे दफ्तर से किसी वास्ते कोई पाबंदी नहीं। इम्तियाज साहब, डॉक्टर साहब और टीम की दफा है इस केस में, लेकिन मैनू इन्हों का पता होंगे सी कि इन्हों का मैनू ऑलरेडी सारा नॉलेज है। इन्होंने खुद देखा, मैं आवाज़ दे के कहना होंगे कि कोई बंदा जो गल करना है वो गल करना चाहे तो ओपन नहीं कर सकता, गल अपने दिल से लैके वापस कर दे। उस तो अलावा मेरे ऑफिस के कोई पाबंदी नहीं है किसी एक वक्त के 40 लोग भी उत्थे होंगे आ, 10 लोग भी होंगे आ। मैं तो कल्ले कल्ले बंदे की गल खुद सुन के अटेंड करके उसकी गल को समझने की कोशिश करता। यही मेरा रवैया है पिछले 2 माह। दूसरा सर इतना रीडिंग वाले का कुछ सत्य बात करें। दूसरा सर एक लगातार इन्ने को हो गया ना जी कि बाजार के कोई एक इंसान सौदा लैन वाले रीडिंग के कोई नहीं होता या किसी चौक से खड़ा होता 2 बार ऑटो के लागे खड़े होते सानू नहीं होती एक कदा करा था भी कोई कितना सत्य बात ये कर दोनों मामले हैं थोड़े ये अखलाकी तौर पे कुछ लोग भी कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, लेकिन स्पीकर का पर्चा देकर मेरे को जमानत में मेरे पैसे ना मिले बेचारा आगे खड़ेगा, चलो कोई नहीं होगा। ठीक है सर वो रोजी कमा रहा है लेकिन स्पीकर बंद कर देना अपनी आवाज़ से ना भी बंद कर। दूसरा सर जी सर आखिरी बात मसलन तकद्दस वास्ते की तौर पर खास तौर पर जो मसलन नज़दीकी होटल वगैरह ढाबा वगैरह रात की बात ओवरऑल मसले को ढाबे वगैरह टी वी लाए होंगे जमात होगा उस सिलसिले में चीज़ें अपनी रोजी रोटी दूर करो अपना, लेकिन मकसद तकद्दस वास्ते अपने स्पीकर अपने टी वी वगैरह जो टैक्स वगैरह खास तौर पर मकसद एरिया के मामले इस गल के ही कानून मस्जिद में कोई अच्छी आवाज़ नहीं कर सकता। उनकी सूरत बड़ी क्लियर है, अगर तो हम इस तरह की कोई भी शिकायत है एक जस्ट मेरी कॉल कर देंगे सिर्फ बंद है सानू नहीं भाई बताऊँगा उसको बगैर भी किसी कराएंगे लेकिन किसी इतला भी नहीं देना पड़ा। करोगे अल्लाह पाक इन्हें नेम का सच कामयाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। या अल्लाह इस माशरे को अमन सुकून वाला माशरा या अल्लाह साडे अहलकार जितने असर साहबा की या अल्लाह उन्हें नेक मकासद कामयाब फरमा। या अल्लाह सानू उन्हें तावन करने की या अल्लाह मसूदा अमन वाला और पैगाम अमन वाला पैगाम देने वाला बना। या अल्लाह साढ़े इमामा साढ़े खतीबा या अल्लाह लोगों को शर पसंदी को दूर रखने की तौफीक दैन की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साढ़े पाकिस्तान की साढ़े माशरे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गरीब तबके का बड़ा तबके या अल्लाह इन्हों का फर्क खत्म फरमा, एक कानून नाफिज फरमा। या अल्लाह जितने भी नेक साथी बादशाह अल्लाह को बोलो मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन ब रहमतिका या अरहमर